Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, Good morning. ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. In our last class, we have completed this lesson number 9 in your class. And I am asking again and again, whenever we are completing the work, whenever I am explaining the lesson, the date you have to put here, you have to put the date on the top so that you can understand when you have completed this lesson. When I got the books, sorry, of your GK, most of you have not written the dates. So try to write down the dates plus many spelling mistakes were there. So please, when I'm sending the this PDF of the lesson, do or copy the work very neatly and properly. Clear, mark the spellings correctly because the same you will get in exam and then there also you will make the mistake. I am checking, no problem, but then also it is from your side. I expect that you should do the work. When I am sending the PDF, it should be very much correct. Clear? So lesson number Yes, ma'am. National Parks and Centuries we have already completed it. And this last black stroke or swamp deer, and this is the unscrambled birds. You get the names of these birds and animals found in some wildlife park sanctuaries in India. Here, unscrambled birds were there. You have to write down. I hope this also you have done. If not done, you can note down. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. If you are having a notebook, rough notebook, you can note down in the rough notebook also. Take out the rough notebook and you can, whatever you want to note it down, you can note it down. Plus, this quiz also we have answered. Yes, ma'am. What will be the Mumbai. quiz? Mumbai. 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 Yes, Mumbai will be the answer. Okay. Now coming to the 10th lesson. 10th lesson is of discrimination. Clear? So for today's date, you will put the date. Today what date? 26th of 26. 20. 26th of Clear? July. Now discrimination. Now first let me explain you what does the word discrimination means. Discrimination means, can anybody know? You might have this word in your civics book. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. I'm treating someone differently. Yes, ma'am. Differently. किसी को अलग किसी के साथ अलग व्यवहार करना या भेदभाव रखना, है ना, उसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन. Yes, ma'am. Sorry. The simple definition of discrimination would be treating someone differently simply because they belong to particular group of people. Now, एक simple definition के रूप में अगर हम देखें, what does the word discrimination means? You can underline. I am underlining here. When you get the books, you can also underline. Clear? Seeing this video. Now, the simple definition of discrimination would be, now this is the definition of discrimination. What is the definition of discrimination? Treating someone differently. Treating someone Differently. differently. सब Differently. किसी को भी कोई अलग तरीके का उसके साथ व्यवहार करना. Simply because they belong to particular group of people. क्यों उसके साथ अलग तरीके का व्यवहार कर रहे हैं? Because वो किसी दूसरे ग्रुप को बिलोंग करता है, इसीलिए. क्लियर? अलग ग्रुप को बिलोंग करता है, इसीलिए डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं. So if the shorter children in a class are permitted to come late, but the taller ones are not, it is discrimination. Now your example is given. ये क्या है? एक एग्जाम्पल दिया गया है. अगर शॉर्ट हाइट के जो बच्चे हैं, और या वी कैन से यहाँ तो शॉर्ट हाइट की लिखा है, शॉर्टर चिल्ड्रन मीन शॉर्ट हाइट के चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनको परमिशन दिया जाए कि ठीक है आप लोग लेट आ सकते हो, और जो टॉल हाइट के हैं उनको बोला जाए कि नहीं, यू हैव टू कम इन टाइम. तो दिस विल बी अ टाइप ऑफ व्हाट? Discrimination. Discrimination. Discrimination on which part? Whose part it is? On the part of taller ones.
टॉरन Taller. Ones. यस, Height. जो हाइट में लंबे हैं In terms of height. हाँ, जो टॉलर हाइट में जो लंबे हैं उनके लिए एक तरीके से ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, भेदभाव रखा जा रहा है कि छोटों को तो आप बोल रहे हो कि ठीक है आप लेट आ सकते हो, और बड़ों को आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो कि आपको क्या करना है, टाइम पर ही आना है. टाइम पर जल्दी आना. आना. Example of discrimination, and first line is the definition of discrimination. Clear? Now it is a discrimination against the taller children in class. किसके प्रति डिस्क्रिमिनेशन बताया यहाँ पर? Taller. Taller children. Taller children. लंबे बच्चों के लिए, जो लंबे हाइट में लंबे हैं उनके लिए एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव रखा गया है. तो आप छोटों को तो एंट्री दे रहे हो लेट भी, और बड़ों को आप मना कर रहे हो. देन people usually discriminate against others to bully them. कभी कभी लोग दूसरों को भेदभाव की नजर से क्यों देखते हैं? ताकि वो उनका मजाक उड़ा सके. बुली मतलब मजाक उड़ाना, Masa. ठीक है ना. मजाक के तौर पे ही उनको, बुली मीन्स मजाक करना, मजाक के तौर पे भी उनको भेदभाव की नजर से देखते हैं. और शो देम दे आर सुपीरियर एंड कैन बी एडवांटेज ऑफ देम एंड कैन टेक एडवांटेज ऑफ देम. दैट मीन्स, और अपने आप को क्या बताते हैं? सुपीरियर. कभी कभी लोग क्यों भेदभाव करते हैं? अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए कि हम तुमसे अच्छे हैं, हमारी थोड़ी कैटेगरी हाई है, हमें ये सब कुछ आता है, इसीलिए हम आपसे थोड़े अलग हैं. इस टाइप से क्या होता है? भेदभाव किया जाता है. Discrimination. In order to feel good or profit other, दूसरों से अच्छा देखने के लिए, दूसरों प्रॉफिट गेन करने के लिए, कुछ अपने लिए अच्छा लेने के लिए दूसरों को नीचा दिखा देते हैं लोग. Clear? Now, why do you think people are discriminated against? Are these some of the possible reasons? These are the some possible reasons. ये possible reasons हो सकते हैं जब लोगों को भेदभाव की नजर से देखा जाता है. एज के फैक्टर से, अभी हमने एज फैक्टर देखा, छोटे बच्चों को यस और बड़े बच्चों को नो. रेस, रेस मीन्स discrimination on the basis of skin, skin color, Skin. skin color, discrimination on the basis of skin color. Skin color. Skin color. हाँ, Skin color. आपने पढ़ा होगा कि यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अफ्रीकन जो अमेरिकन भी Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. सेटल हो गए थे अमेरिका. Yes, ma'am. को भेदभाव की नजर से देखा जाता था अमेरिका में. किसके बेसिस पे? रेस के बेसिस पे. क्यों? उनकी Race की basis. कलर डिफरेंट था, उनका नेशनैलिटी भी डिफरेंट था. वो अफ्रीका को बिलोंग करते थे और वो यूएसए को. तो इस टाइप से America से. हाँ, कभी कभी हम लोग इस टाइप की डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है. सोशल स्टेटस, जेंडर, मेल और फीमेल में भी कभी कभी भेदभाव होता है. ये सन जेंडर मीन्स मेल और फीमेल, Yes, या ma'am. सन और गर्ल, Yes, ma'am. डॉटर और सन के बीच में होता है भेदभाव. कहीं कहीं Yes, ma'am. होता है डॉटर और Yes, ma'am. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. वेट मीन्स थोड़ा सा जो कोई हेल्दी बच्चा होगा तो उसको मना कर दिया जाएगा कि आपसे ये काम नहीं होगा, आप ना बैठ जाओ, और दूसरे जो वेट जिसका काम है वो आप ये काम करो. तो इस टाइप से अगर कर दिया तो दैट मीन्स उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन. किसके साथ डिस्क्रिमिनेशन? हेल्दी पर्सन के साथ, है ना, जो थोड़ा सा क्या है, वेट में ज्यादा है. रिलीजन के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है. फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है. कभी कभी फिजिकल फीचर्स कैसे? कोई किसी फिजिकली वीक, किसी का कोई आर्म लेग नहीं है, तो उसको भी आप कभी कभी कोई भेदभाव की भावना से देखते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, है ना. अरे ये तो इसका काम नहीं होगा, इससे इसका नहीं करता है, इसका पाँव नहीं काम करता है, इसलिए इसको अलग बैठा दो. वो नहीं देखते वो पर्सन में एबिलिटी है, वो अगर हाथ पाँव नहीं है मगर वो फिर भी चाहेगा तो वो जरूर से वो काम कर सकता है, जो कि फिजिकली बेटर है पीपल, उनसे भी अच्छा कर सकता है. बट दिस इज वी कैन से जनरली अ टाइप ऑफ ओपिनियन ऑफ द पीपल, है ना. और इसी बेसिस पे कभी कभी क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है लोगों को. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग.
Yes, ma'am. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे भी कोई हाईली एजुकेटेड आ जाता है, कहीं आप इंटरव्यू देने जाते हो और आपसे ज्यादा क्वालिफाइड आ जाता है, तो उसको क्या देंगे, रिक्रूटमेंट देंगे नौकरी में। रिक्रूटमेंट मीन्स अपॉइंटमेंट दे देंगे और आपको नहीं देंगे, तो चाहे आप में और कितना भी एबिलिटी हो, एक्टिव हो, क्वालिफिकेशन दूसरी और कुछ हो, मगर उसको आप दूसरे को दे दिया, दैट मीन्स हियर आल्सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिस्क्रिमिनेशन इज देयर. So some physical disabilities, now here physical disabilities are given, which I had given you earlier about features. Mental disabilities also, illness like AIDS, कोई illness suffer कर रहा है, या people infected with COVID-19 virus, financial condition. So all these we can say as, why do you think people are discriminated against? Are these some of the possible reasons? Yes, these can be the possible reasons. Yes or no? Can be these the possible reasons? Yes, ma'am. Ma'am. Just now we said Yes, ma'am. किसी को कोविड-19 वायरस हो गया, तो अब क्या हुआ था, उनको आइसोलेशन में रख दिया गया, उनको बोल दिया गया आप बिल्कुल अलग हो, आप खाने पीने की चीजें नहीं लगाओगे, आप इधर उधर घूम नहीं सकते, तो क्या हो गया, एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं हम उसको, फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, दाओ फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, बट एक तरीके से उसके मन में आएगा कि मुझे अलग रखा जा रहा है. यस और नो? Yes, ma'am. Okay, now fill in the blanks. The blanks. Dash discrimination is a major problem even in modern India because women are not treated equally in many families and communities. Now, when women are not treated Gender. Gender. है ना, वुमेन मैन वुमेन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है कोई सोसाइटीज में, कि भाई आदमी तो काम करने बाहर जा सकते हैं, औरतें बाहर नहीं जाएंगी काम करने, घर का काम काज ही देखेंगी. कहीं कहीं किस किस की सोसाइटी में, मोस्टली इन रूरल एरियाज में भी कभी कभी, अब तो रूरल एरियाज में भी वुमेन्स जो है वो फार्म एक्टिविटीज में जाने लग गई हैं, बट ये कभी कभी होता था और अभी भी कहीं कहीं देखने को मिलता था. दैट इज कॉल्ड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, व्हेन मैन एंड वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड. क्लियर? नेक्स्ट Yes, ma'am. चाहो तो नंबर 1 बी नंबर 1 लगाकर जेंडर लिख सकते हो इफ यू वांट इन योर रफ नोटबुक, अदरवाइज इफ यू वांट टू share do it from the PDF, you can do it from the PDF also. Now some people in India are discriminated against because they were born into a particular caste. अब कुछ लोगों को डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की नजर से क्यों देखा जाता है, बिकॉज वो किस, दे आर बॉर्न इनटू अ पर्टिकुलर कास्ट, कोई पर्टिकुलर कास्ट, वो कास्ट में वो पैदा हो गए हैं, बॉर्न हो गए हैं, इसलिए उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. क्लियर? कास्ट सिस्टम इज प्रिवेलिंग स्टिल, अभी भी कास्ट सिस्टम इंडिया में है, इंडियन सोसाइटी में. हाई कास्ट, लो कास्ट, हम तो ब्राह्मण कास्ट के हैं, और तुम किस कास्ट के हो, वैश्य या शूद्र, तो अभी भी ये भेदभाव देखने को मिलता है कास्ट वाला. ना अनबिलीवेबली some people still feel those who belong to a particular profession to be untouchable. a particular profession में कोई अगर पर्सन है तो उसको भी इल ट्रीटमेंट दिया जाता है, बिकॉज वो पर्टिकुलर प्रोफेशन में वो पर्टिकुलर काम करता है और वो काम को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, उसके काम को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, बुरा काम समझा जाता है, छोटे लेवल का काम समझा जाता है, इसीलिए लोगों को भी क्या करा जाता है, ट्रीटमेंट नहीं, डिस्क्रिमिनेट किया जाता ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन, Occupation. ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन. Now next is some people discriminate against other because they practice another religion, that is दूसरे रिलीजन, कोई अगर दूसरे रिलीजन का, अगर आपका कोई पर्टिकुलर एक रिलीजन के लोग, कम्युनिटी के लोग बैठे हैं एक जगह, और अगर कोई दूसरा रिलीजन का बंदा आ जाता है तो आपको वो लगेगा, वो उसको खुद को लगने लगेगा कि वो अलग अलग है और आप भी उसको अलग से ट्रीटमेंट दोगे. क्यों? बाकी तो सारे एक ही रिलीजन के, वो अलग से दूसरे रिलीजन का आपकी कम्युनिटी में आ गया है, आपके ग्रुप में आ गया है, तो on the basis of this religion also it is discriminated. Sadly, some people believe that fair-skinned people are in some way superior to others.
fair skinned people. Fair skinned people means गोरी चमड़ी के लोग, है ना, जिसका गोरा रंग है उनको सुपीरियर माना जाता है कहीं कहीं. दिस इज कॉल्ड रेशिज्म. अभी मैंने आपको समझाया रेशिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ द स्किन, है ना. Yes, ma'am. Okay. Now some of us who belong to urban India and live in cities behave unfairly towards those who live in village in rural area India. अब कुछ कभी कभी हम लोग अर्बन एरिया में रहते हैं. अर्बन एरिया मीन्स हम शहर में रहते हैं, और कोई गांव का आदमी आ जाता है तो हम उसको क्या देखते हैं, अरे ये तो गांव का आदमी अनपढ़ है, गंवार है, इसको कुछ समझ में नहीं आएगा. इस टाइप से हम लोग अपनी थिंकिंग रखते हैं. तो एक तरीके से उसके साथ भी हम भेदभाव की भावना रखेंगे कि हम तो सिटी में रह रहे हैं, शहर में रहते हैं, हमारी नॉलेज अच्छी है, हम थोड़ा सा सुपीरियर हैं, हम जो रह रहे हैं उनसे हम थोड़ा सा हाई क्लास में बिलोंग करते हैं. तो इस तरीके से भी डिफ्रेंसिएशन हमको देखने को मिलेगा. क्लियर. मेकिंग पीपल कॉन्शियस ऑफ एंड कंसर्न अबाउट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ. गुड एग्जाम्पल ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन. नाउ मेकिंग पीपल कॉन्शियस ऑफ एंड कंसर्न अबाउट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. कभी कभी लोगों को कॉन्शियस करना और वुमेन की सेफ्टी के बारे में और ज्यादा अवेयर करना इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन. कि जेंडर के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है सोसाइटी. कैसे कि वुमेन को ज्यादा वो कंसर्न देते हैं, वुमेन को प्रोटेक्टिव सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी में ज्यादा. क्लियर. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Next is we should be dash towards others and religious practices. We should be tolerant. 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 Tolerant means Tolerant. respect. We should show respect to the other religious practices. जो भी दूसरे religion के लोग हैं उनके प्रति हमें respect show करना चाहिए. Now during the coronavirus pandemic, some people and their families who were infected with the virus were treated badly by others, including their neighbors and friends. What did these people do? Wasn't that sad and hurtful? मैंने आपको जैसे अभी बताया पैंडेमिक कोरोना वायरस में सबको अलग अलग दिया गया, वायरस पॉजिटिव दिया गया था, है ना. तो जो भी पॉजिटिव आए थे उनको फैमिलीज को उनको सबको क्या कर दिया गया था, क्वारंटाइन कर दिया गया था. सो इज दिस ट्रीटमेंट shows that the people whom you are treating like this, they are not hurt. क्या उनको बुरा नहीं लगा होगा जिनको अलग रखा होगा कि हमें अरे हमें तो कोरोना वायरस हो गया अब हमें तो अलग रहना पड़ेगा. वैसे नहीं, ऐसे ही होता है ना थिंकिंग. Now India about 82.14% of the male population is illiterate. इतना illiterate means पढ़े लिखे हैं. However, only 65.46% of the female population is illiterate. अब सिर्फ फीमेल पॉपुलेशन, अब इतने लोग तो पढ़े लिखे हैं मगर इतने लोगों में से सिर्फ 65.46% of the female population is literate. सिर्फ इतने ही वुमेन फीमेल लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं. Now this is extremely unfortunate. What do you think are the reason for this? What can be done to change the situation? That means अभी भी लोगों की थिंकिंग ऐसी है कि वुमेन को एजुकेशन जरूरी नहीं है, सिर्फ बेटे को वो हायर एजुकेशन के लिए आगे पढ़ने देते हैं कुछ सोसाइटीज में, और अभी भी वुमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं. इसीलिए नाउ ऑल्सो परसेंटेज ऑफ लिटरेट वुमेन इन सोसाइटी इज वेरी लेस. क्लियर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Jain, Buddhist, Parsis and other practice their religion to find peace and to be good human beings, be kind towards others, isn't it? Now so many religions are there in our Indian society. Everyone practices its own religion. हर एक अपना धर्म मानता है, but क्या it is from our side, it is not our duty to respect other religious people? Hello, it is not our Yes, ma'am. we should. Now we belong to Hindu.
but Hindu religion, but it is our duty to respect Muslim, Christian, Sikh, Jain, Buddhist, Parsis, and all other religions which are present in the society. Thou we are Sikh, thou we are Christian, whatever religion we are having, but it is our duty to respect other religion also without proving any discrimination on their part. Clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Now, when men are given better facilities or opportunities, the women, yes, Asim, you want to know anything? Asim, you want to know anything? Again, I'm asking. When men, मैम सॉरी मैम हो गया okay. When men are given, now you can erase this, whatever you have done by mistake also. When men are given better facilities or opportunities than women, we say there is a gender bias. You can write Yes. BIAS. BIAS. Yes. Clear? Yes, ma'am. Yes. That is gender bias. Means gender importance to one, gender is given. Clear? When men are given better facilities, जब आदमियों को ज़्यादा facilities, ज़्यादा opportunities दे दी जाती है, women से ज़्यादा, then that means we are gender bias. Gender bias है हम लोग. I hope clear. It is clear. Yes, ma'am. For girls and women. Now, what is the good news for girls and women? In recent years, many state governments have launched welfare schemes for women and girl child. Girl child के लिए बहुत सी government schemes government ने start करी है schemes for the upliftment and for the upliftment of the status of women as well as for the girls. Now, here are a few examples. West Bengal Kanya Shri initiative offers an annual scholarship. Now in West Bengal, this government has started this scheme, Kanya Shri. Kanya Shri scheme is started in West Bengal. And what about this scheme? It is given that annual scholarship is given to the girls. And one-time grant 25,000 for unmarried girls. 25,000 for unmarried girls between 13 to 18 years of age. Enroll in the government school or vocational training courses. Training courses में या कहीं भी कुछ भी आप enrollment करना चाहते हो अपना को girls involve करना चाहती हैं vocational training में इस particular course training के लिए तो government is providing rupees 25,000 for them. So this is to uplift the status of the woman. These all courses, these are schemes are started to uplift the status of women. This is to encourage families from disadvantaged background to educate their minor girls and not get them married. और ये especially disadvantaged background means जो अपने girls को जिन families में जो we can say backward जो classes है जो अपनी families में girls को हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेज सकती हैं उनके लिए स्पेशल स्कीम्स चालू किए हैं ताकि वो अपने लड़कियों की छोटी एज में मैरिज नहीं कर दें बट उनको आगे पढ़ने की फैसिलिटीज प्रोवाइड हेलो Yes, ma'am. yes Yes, ma'am. network issue everybody's network issue was there beta so I was not able to continue might be network issue will be there you remain sitting till the class I say that's all okay hello Yes, ma'am. okay network Yes, issue ma'am. fine now Yes, ma'am. here the government now here we were this is to encourage families from the disadvantaged backgrounds to educate their minor girls and not get them married. It has been recognized by United Nations Department of International Development and the UNICEF. That means this step is taken to uplift the status of girl child, especially vocational training and the fund is given so that they can get higher education.
Now the government of Tamil Nadu puts 50,000 as a fixed deposit. Now government of Tamil Nadu 50,000 as the fixed deposit for the girl children when they are born. जैसे ही गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है उनके लिए 50,000 फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाता है तमिलनाडु में, एंड विच कैन बी विड्रॉन आफ्टर द गर्ल्स 18th बर्थडे. जब गर्ल 18 साल की हो जाएगी तभी ये पैसा निकाल सकते हैं. दिस इज टू डिस्करेज फीमेल इन्फेंटिसाइड. और ये एक तरीके से फीमेल इन्फेंटिसाइड को डिस्करेज करने के लिए, क्योंकि पहले क्या होता था कि एज सून एज द गर्ल चाइल्ड वाज बोर्न या उसको गर्ल चाइल्ड को वूम के अंदर ही किल कर दिया जाता था, बिकॉज इट वाज सीन दैट दे वर नॉट एबल टू ब्रिंग अप द गर्ल्स. दैट इज व्हाई दिस स्कीम इज स्टार्टेड बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट. 50,000 उनको फिक्स डिपॉजिट करवा दिया जाता है गर्ल के, जैसी गर्ल पर बॉर्न होती है, और 18th बर्थडे पे उसको विड्रॉल करा जाता है पैसे को, सो दैट जो भी जिस किसी के भी गर्ल चाइल्ड है तो वो अपनी गर्ल चाइल्ड को किल नहीं करें, क्लियर, बिफोर दे आर born. Now 33% of jobs in the police force of Gujarat are now reserved. Wait a second. Ma'am, Yes, beta. ma'am, government का 50,000 Hello. देना पड़ता है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट डालती है ये 50,000. जैसे ही लड़की पैदा होती है गवर्नमेंट फिक्स कर देती है 50,000 उस लड़की के नाम पर, और फिर 18th बर्थडे पे ही उसके पेरेंट्स या वो निकाल सकते हैं, क्लियर. नाउ 33% ऑफ जॉब्स इन गुजरात आर नाउ रिजर्व फॉर पुलिस. अब नाउ गुजरात में क्या स्टेप लिया गया है टू ब्रिंग अपलिफ्ट द स्टेटस ऑफ वुमेन. 33% जो जॉब्स है गुजरात में वो पुलिस फोर्स की किसके लिए रिजर्व किया गया है? वुमेन. यस, वुमेन रिजर्व किया गया है. देन टू प्रमोट वुमेन्स एम्पावरमेंट. नाउ गूगल इंडिया लॉन्च एज इनिशिएटिव कॉल्ड हेल्पिंग वुमेन गेट ऑनलाइन. नाउ गूगल इंडिया ने भी लॉन्च किया एक प्रोग्राम हेल्पिंग वुमेन गेट ऑनलाइन. दिस विल एनेबल वुमेन इन इंडिया to use the internet more effectively. Only 1/3 of all internet users in India are women. Clear? Women ताकि और ज्यादा से ज्यादा गूगल को एसेस कर सके, इसलिए गूगल इंडिया ने भी ये हेल्पिंग वुमेन गेट ऑनलाइन किया है. Now yes or no? Black people in USA were not permitted to go to some restaurant or sit to the bus right till recent 1960. Yes. Yes, yes. Yes, ma'am. Next is only white were allowed to be the part of government in South Africa till recently 1994. Yes. It is also. Then women cannot become officers in Indian Army, Navy or Air Force. No, no, ma'am. No. बन सकती है इंडियन आर्मी में, वुमेन्स भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं. लेस देन 12% ऑफ इंडियाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर वुमेन. यस, अभी Yes, ma'am. और वुमेन्स को पार्टिसिपेशन के लिए जरूरत है. मैन इन इंडिया कैन नॉट बिकम नर्सेस. No, No. अभी भी no, मेल नर्स भी होते हैं ना, मेल नर्स भी होते हैं ना. मैन इन इंडिया कैन नॉट बिकम. Yes, ma'am. Many girls in India are forced to get married by their family even before they reach the age of 18. 18 साल से पहले ही उनको शादी के लिए फोर्स कर दिया जाता है. यस, अभी भी कई जगह रूरल एरियाज में है कि छोटी एरिया में चाइल्ड मैरिज के तौर पे किया जाता है. इन सम कंट्रीज सम पार्ट ऑफ द गर्ल्स बॉडी आर mutilated as part of religious or social traditions. yes. Yes. Then a girl has to leave school or college if a family forces. अगर गर्ल Yes. मैरिज करने के लिए बोलती है तो गर्ल को छोड़ना पड़ता है स्कूल कॉलेज. यस. Yes. Now, fact-wise, people around the world are showing their support for those protesting in USA as a part of campaign against racism. Now, जो racism के खिलाफ हैं, अब लोग ज्यादा से ज्यादा उनको सपोर्ट कर रहे हैं. जो स्किन कलर पे डिफरेंशिएशन करते हैं उनको अब लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि अब वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे, और racism should not be there on the basis of skin color. There are doing
they are doing this by kneeling on one leg for a few seconds. Few second के लिए they are kneeling on one leg. कैसे अपना वो शो कर रहे हैं प्रोटेस्ट by kneeling on one leg for few seconds. People started to take the knee of George Floyd, an African American man was killed by the police even though he was unarmed. अब अफ्रीकन अमेरिकन जो था जॉर्ज फ्लॉयड ये किल कर दिया गया अमेरिकन के लोगों के द्वारा when he was unarmed, जब उनके पास कोई वेपन नहीं था तब, इसीलिए ये खिलाफ शुरू करा है. आई होप इट इज क्लियर एवरीवन. Lesson 10 clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Group also I am going to send this lesson number 9 and 10. Okay. Keep the PDF safely till you get the books. I hope it is. Yes, ma'am. Yes, ma'am. That's all for today. Yes, ma'am. Have a nice day, ma'am. Type present and then you can leave the Have a nice day, ma'am. same to you. हम you will send the lesson number 9 and 10. हेलो क्या हो बेटा? मैम 9 और 10 दोनों चैप्टर्स भेजोगे आप? हाँ 9 और 10 दोनों भेज दूंगी. अब 8 7 तक तो भेज दिया था. 7 तक भेज दिया था ना. 7 8 Yes, ma'am. Yes. भेज दूंगी. ओके मैम मैम मैंने एक बार प्रेजेंट टाइप कर ले, वापस करना है. बिफोर लीविंग द क्लास टाइप once again present in the chat box. मैम Leave the class. मैम वो हो ही नहीं रहा. इसमें बता रहे कि आप मीटिंग में नहीं हो, वो टाइप नहीं हो रहा है. अच्छा कोई बात नहीं. मैं ये बेटा सब टाइप कर रहे हैं. आई डोंट नो हाउ मैम हो रहा है. नहीं हो रहा तो नो प्रॉब्लम. Yes, ma'am. हम लिखा हुआ. नो मैम मैंने तो कर दिया. ओके ओके नो. ठीक है अगर हो गया तो ठीक है. मैम मेरे भी नहीं. ओके दैट्स ऑल. नाउ यू कैन. मेरे भी नहीं हो रहा. Okay, now you can leave the class, beta. After, if you can't, Yes, ma'am. Have a nice day. I mark the present. मैंने मार्क कर दिया at present तो ठीक है ना.